Good morning, students. Today we will discuss about. Good morning, students. Today we will discuss about AC generator. AC ਜਨਰੇਟਰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵੀ AC ਜਨਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੋ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਗੈਰਾ ਵਰਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ AC ਜਨਰੇਟਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਲਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਔਰ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇੰਨਾ ਕੀ ਫਰਕ ਸੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕਸ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ 3rd ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਦੈਨ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਲਾਈਨਸ ਓਬਵੀਅਸ ਆ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਬਟ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਏ ਦ ਪੋਲਸ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰੰਟ ਔਰ ਇੰਡਿਊਸਡ EMF ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ AC ਜਨਰੇਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਨੇ। 1 ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਵਰਕਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਕੈਨੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੈਨ ਉਹ ਵਾਲੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਰਕ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂਗੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ એનર્ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੂਗੀ। ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਆਹ ਸਰਕਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਸਰਕਟ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਸਲ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਵਾਇਰ ਹੈ ਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੇ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਔਨ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਟ ਮੇਰਾ ਔਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਮੈਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ, ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੇ ਸਰਕਟ ਔਨ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਆ ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਿਕਸਡ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਊ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਤੀ, ਸਿੰਪਲ ਫਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦਾ ਜਾਊਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ AC ਸੋਰਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। AC ਸੋਰਸ ਲਗਾਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ AC ਸੋਰਸ ਦਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ AC ਸੋਰਸ ਲਗਾਇਆ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚੇਂਜ ਕਰੂੰਗੀ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੈਨ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਚੇਂਜ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਮਤਲਬ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੈ AC। ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਫਿਕਸਡ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੈਟਰੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਿਕਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੰਟ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਬਟ ਬਾਏ ਦ ਯੂਜ਼ਿੰਗ AC ਸੋਰਸ ਦੈਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚੇਂਜ, ਮਤਲਬ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਫਟਰ ਸਮ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿੰਗ ਕਰੰਟ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਦੈਨ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਕਰੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ AC ਕਰੰਟ ਬੋਲਦੇ। ਤਾਂ ਇਸ AC ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਪੋਲੈਰਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗੀ ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੈਨ ਉੱਥੇ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ AC। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਈ ਆ।
जे पोलैरिटी चेंज हो गई दैन AC करंट, अगर पोलैरिटी चेंज नहीं हुई दैन DC करंट। ये चीज़ समझनी है सिंपल वे दे विच, समझ गई। हुण मैं तुहानूं कंस्ट्रक्शन दस दी भी AC जनरेटर किस तरह फॉर्म होया है। देखो वी हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग स्टेशनरी मैगनेट, वन इज नॉर्थ एंड अनदर वन इज साउथ। अपने दो पोल्स लए ने, वन इज नॉर्थ एंड अनदर वन इज साउथ। जदों अपने स्टेशनरी नॉर्थ ते साउथ पोल रखिया दैन आपां नूं पता भी इन्हां ने की जनरेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ने। फिर अपने की लिया इन्हां दे रस्ते दे विच, इन्हां दे वे दे विच, दोनों के पोल के वे दे विच अपने की लिया एक रिक्टेंगुलर कॉइल लिया ABCD रिक्टेंगुलर कॉइल। दिस इज नोन एज आर्मेचर, इनू आर्मेचर बोलते हैं। हैविंग एंड टर्न्स, देखो ये बहुत ज़्यादा टर्न्स होंगे, एवं नहीं मैं तो तुहानूं वन करके दिखाती ना, मतलब एवं बहुत ज़्यादा टर्न्स होंदियां ने, N नंबर ऑफ टर्न्स होंदियां ने जिहदे विच दी जिहदे उपर दी जिहड़ी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ने वो क्रॉस करदियां ने, ठीक है जी। दैन अपने कोल की हो गया, मतलब जो अपने रिक्टेंगुलर कॉइल लिया जिहदियां N टर्न्स सीगियां, फिर उस तो बाद की देखिया भी इस रिक्टेंगुलर कॉइल नूं अपने दो स्लिप रिंग्स दे नाल जोड़ता, वन इज रिंग 1 एंड अनदर वन इज रिंग 2। ये की है अपने को आ दो रिंग्स लगी हुई हैं, देखो ध्यान नाल देखो, जी अपने को AB इनू अपने फर्स्ट रिंग के नाल जुड़िया हुआ है ना, एंड जिहड़ा अपने को CD है मतलब इहदा मिड अपने को की हैगा एंड ते दोनों रिंग्स के नाल जुड़िया हुआ है, ठीक है। तो एंड ते की लगाया हुआ है हैंडल, जिहदे नाल आपां मैकेनिकल वर्क करांगे, मतलब इनू रोटेट करांगे, समझ आ गई। लास्ट वाला की है इत्थे कार्बन ब्रशेस, दीज आर नोन एज कार्बन ब्रशेस, दीज आर नथिंग, दीज आर द मेटल है सिंपल कार्बन ब्रशेस ने। कार्बन ब्रशेस क्यों लगाए ने, क्योंकि ये इलैक्ट्रिक कनैक्शन प्रोवाइड करते हैं। इलैक्ट्रिक कनैक्शन किदे किदे विच प्रोवाइड करते हैं, रिंग 1 एंड एक गैल्वेनोमीटर लग्या हुआ है, लोड मैंने दिखाया ना दोनों, गैल्वेनोमीटर लग्या हुआ है जिहड़ा आपां नूं करंट दी डिफ्लैक्शन देगा, समझ आ गई। जो मैकेनिकल वर्क करांगे दैन वो इलैक्ट्रिकल एनर्जी दे विच कन्वर्ट होगा, दैन ऑब्वियस है अपने को की जनरेट होना, इलैक्ट्रिक करंट जनरेट होना, समझ गए, क्लीयर होया। ये वाली चीज़ है सारी, एक कंस्ट्रक्शन है, देखो मैंने लिखी भी हुई है। We have to take strong stationary magnets north as well as south. This will provide a magnetic field lines. In this magnetic field lines, we have to, in the way of magnetic field lines, we have to take rectangular coil having N turns, ठीक है, and further it connect with two slip rings. One is ring 1 and another one is ring 2. When a rectangular coil rotates, they will also rotate. ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ भी जो रिक्टेंगुलर कॉइल रोटेट करूँगी, वर्किंग च समझानी है मैं, देखो आ हैंडल लगे ना, मैं रोटेट करूँगी एवें एवें, दैन स्लिप रिंग्स ऑल्सो रोटेट्स विद दिस रिक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है। एंड ऑल्सो टू स्लिप रिंग्स कनैक्ट विद द कार्बन ब्रशेस दे नाल, दीज आर द कार्बन ब्रशेस। फर्दर इट कनैक्ट्स विद द लोड, दैट्स मीन दिस इज नोन एज गैल्वेनोमीटर, जितों अपने डिफ्लैक्शन लैनी है, ठीक है। दैन कार्बन ब्रशेस मैं तुहानूं दस दिता भी ये की प्रोवाइड करते अपन इलैक्ट्रिकल कनैक्शन बिटवीन द स्लिप रिंग्स एंड लोड, मतलब जितों अपने डिफ्लैक्शन लैनी है गैल्वेनोमीटर। ओके बेटा, हुण आपां करदे आ इहदी वर्किंग इंपॉर्टेंट आ। वर्किंग मतलब इहदा वर्क करके देखांगे किस तरह ये करंट नूं प्रोड्यूस करता है। ओके बेटा, हुण देखो वर्किंग, सब तो पहली गल ध्यान नाल समझो, जो मैंने रिंग एवें आ वाला मेरा हैंडल है, ठीक है, इनू मैंने रोटेट किया एवें, जो मैंने रोटेट किया तो की देखा भी जी AB है, आ वाली AB हैगी है रेक्टेंगुलर कॉइल, ये ऊपर चली गई एवें, है ना, ये ऊपर चली गई एवें, आ ऊपर चली गई, दैन CD मेरी नीचे चली गई, क्योंकि ये अपने एवें रोटेट क्यों किया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स वध तो वध क्रॉस करनगियां, ठीक है, एवें तो ऊपर दी जा रही है ना नदियाँ, दैन फिर अपने इनू रोटेट करता, जो अपने रोटेट किया दैन की होया भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स काफ़ी हद तक क्रॉस कर गई। अपन ये भी पता भी नॉर्थ पोल तो निकलदियां ने, साउथ पोल तो की करदियां ने वो जाके इमर्ज होंदियां ने, तो अपन पता ही है चीज़, है ना। तो देखो जो AB, फिर मैंने की देखा भी जो AB वाला साइड है, AB वाली रिक्टेंगुलर कॉइल है वो ऊपर चली गई, एंड जो मेरे को CD है वो नीचे चला गया, समझ गई। इन्नी गल पहली हाफ रोटेशन के देखो
ए बी ऊपर चला गया एंड सी डी नीचे चला गया। बाई यूजिंग फ्लैमिंग, चाहे तुम फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड यूज़ कर लो चाहे फ्लैमिंग राइट हैंड यूज़ कर लो, आपां दी डायरैक्शन देखनी है। ठीक है, सिंपल डायरैक्शन देखनी है भी करंट फ्लो किस तरह करूँगा। ठीक है, सिंपल वर्किंग का यही मतलब होंगे भी जो करंट फ्लो कर रहा तो फिर पता लग गया कि इलैक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होंगे तो करंट तो होगा ही होगा। दैन वो डायरैक्शन देखनी है भी हाँ डायरैक्शन किधर को बनती है वो। हुण अपने जो रोटेशन की दैन मैंने देखा भी ए बी ऊपर चली गई एंड सी डी नीचे चली गई। जो ए बी मतलब आ मेरा बी ए ऊपर चला गया दैन मैंने देखा बाई यूजिंग अ फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल। फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल तो तुसीं सारे ने देखा होया, दिस इज़ अ फोर्स एंड दिस इज़ अ मैगनैटिक फील्ड एंड दिस इज़ अ करंट, FMC मैं तुहानूं दस्सिआ फादर मदर चाइल्ड। ठीक है, तो देखो अपने कोल की है जी अपने कोल रैक्टेंगुलर कॉइल की वन साइड है ऊपर चली गई। जो ऊपर चली गई मतलब फोर्स अपवर्ड लग रहा है, फोर्स अपवर्ड लग रहा है मतलब मेरा जो मैगनैटिक फील्ड है वो तो सीधा ही इधर को जा रहा क्रॉस कर रहा है ना। नॉर्थ तो किधर जा रहा साउथ वाल जा रहा, तो तुहानूं दिख ही रहा है ना नॉर्थ तो साउथ वाल जा रहा है। तो जी मेरा डायरैक्शन आ करंट दी किधर जा रही है इन द डाउनवर्ड सैशन। देखो डाउनवर्ड सैशन जा रही है ना एवं इधर जा रही है, फोर्स अपवर्ड क्योंकि मेरी मैगनैटिक फील्ड जी कॉइल है ऊपर चली गई, अपवर्ड फोर्स मैगनैटिक फील्ड लाइनस इधर नहीं जा रही ने एंड मेरा जोड़ा फोर्स है वो किधर चला गया एवं। समझ गए, जो एवं गई मतलब डायरैक्शन आप इस तरह लिखांगे एवं एवं क्रॉस करती हुई। दैन देखो हम तुम ध्यान नाल देखो जी रिंग 1 है वो ही बी ए दे नाल जुड़ी हुई है। ठीक है, दैन फिर एवं करती हुई इधर को जाऊगी, दैन अपने को एवं रिंग पास होंदा होया एवं ये दी जाता होया इत्थे जाऊगा एवं एवं अपने को डायरैक्शन बन जाए। डायरैक्शन समझ गए, फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल समझे भी जो ही अपने को जो हाफ रोटेशन हुई ए बी ऊपर चला गया बाई यूजिंग फ्लैमिंग लैफ्ट हैंड रूल। दैन अपने की देखा भी फोर्स जो अपवर्ड लग रही है मैगनैटिक फील्ड लाइनस डाउनवर्ड हो मैगनैटिक फील्ड लाइनस की कर रही है नॉर्थ तो साउथ वाल जा रही है इस डायरैक्शन के। दैन मैंने देखी करंट की डायरैक्शन इस तरह होगी, करंट की डायरैक्शन इस तरह मतलब एवं है ना करंट की डायरैक्शन इस तरह होगी। ठीक है, दैन मैंने वो डायरैक्शन लगाती क्योंकि रिंग 1 अपनी ए बी आर्म के नाल जुड़ी हुई है। देखो ध्यान नाल देखो इस तरह वो डायरैक्शन बन जाएगी, डायरैक्शन बन गई मतलब हम तुसीं ये डायरैक्शन याद रखनी है भी बी तो ए फिर रिंग 1 दे विच गई, रिंग 1 दे विच जाण तो बाद फिर वो लोड दे विच गई एंड लोड तो बाद वो रिंग 2 दे विच गई, रिंग 2 तो जाती हुई फिर किधर गई वो सी डी मतलब पहला डी फिर सी डी सी आ तुसी डायरैक्शन याद रखनी है। समझ गए, हम तो देखो तुहाडी हाफ रोटेशन से इस तरह समझ आ गया है ना। जो हाफ रोटेशन सी दैन अपने कोल की होया भी जी अपने कोल आह बी सी बी ए तो चली गई मतलब एवं रोटेट मतलब एवं रोटेट कर गई ना। हम जो हाफ रोटेशन सैकेंड हाफ रोटेशन हुई एवं करके फिर आप एवं करांगे ना तो जी मेरी यहाँ सी डी है ये ऊपर चली जाऊगी, दैन ए भी मेरी नीचे चली जाऊगी। दैन फिर मेरे को की होया मतलब एवं रोटेशन होगी, जो एवं रोटेशन होगी दैन मैंने देखा भी जी अपने को बी जी आ बी ए है वो तो इधर चली गई, इधर अपने को की आ गया अपने को सी डी। हुण अपने को सी डी ऊपर आ गया जो अपने क्योंकि हाफ रोटेशन च देखिया अपने आ हुण मैंने दोबारा मैंने थोड़ा हैंडल नूं घुमाया दैन सी डी मेरी ऊपर चली गई एंड बी ए मेरे को नीचे आ गई। जो नीचे आ गई डायरैक्शन तो मेरी उही रही करंट दी। फिर मैंने फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल लगाया, जो फ्लैमिंग्स लैफ्ट हैंड रूल लगाया दैन मैंने देखा जी अपनी फोर्स है हुण मेरी डाउनवर्ड आ वाली जी फोर्स है डाउनवर्ड हो गई क्योंकि डाउनवर्ड चलेगी बी ए एंड मैगनैटिक फील्ड लाइनस तो फिर भी इधर ही जा रही ने एंड जो मेरे को करंट की डायरैक्शन है वो की होगी मेरी किस तरह होगी हुण मेरे को अपवर्ड अपवर्ड होगी ना मैं अपवर्ड चलेगी। दैन हुण मेरे को डायरैक्शन किस तरह होगी इस तरह मैं तुहानूं बना के दिखानी है। देखो एवं चली गई एवं दो रिंग्स लगिया हुई ने आ तुसीं इनू पहले नाल कनैक्ट तो आह तो दूजे नाल भी कनैक्ट है ना। फिर जो एवं एवं जाती हुई दैन ये किहदे नाल पास हुई अपने को आह कनैक्टेड है आ अपने को कनैक्टेड नहीं पर जो दोबारा बना के दिखानी है। अपने कोल की आ गया सी डी हूँ ऊपर आ गई दैन ए बी ए अपने को नीचे चली गई
दैन बी ए जो नीचे चली गई दैन अपने कोल की आए करंट की डायरेक्शन सी तो डी एंड जिहड़ा सी तो डी है वो अपने कोल जुड़िया होया दोनों स्लिप रिंग्स दे नाल इस तरह जुड़ा हुआ दैन इतने हैंडल लग्या हुआ अपने को अपने को फर्स्ट है। तो हुण एवें एवें पास होंदा होया अपने को करंट जिहड़ा अपने को हुण इधर आ गया सारा ब्रशिज है ना, फिर उस तो बाद एवें फिर अपने को एवें डायरेक्शन गई, समझ आ गई। इत्थे 2 कार्बन ब्रशिज लगे हुए हैं, फिर एवें अपने को डायरेक्शन गई, समझ आ गई मेरी गल, क्लीयर होया। क्योंकि अपने को ना सी डी ऊपर चला गया, जो सी डी ऊपर चला गया फोर्स डाउनवर्ड हो गया, दैन करंट की डायरेक्शन एवें अपने को अपवर्ड हो गई, दैन एवें अपने को मूव होया। हुण तुसीं डायरेक्शन याद रखनी है सी तो डी, फिर रिंग किहदे विच गई अपने को 1 2, फिर अपने को लोड दे विच गई, लोड तो बाद किहदे विच गई ए तो बी, एवें तुसीं डायरेक्शन याद रखनी है, समझ आ गई। एवें अपने को वर्किंग होंदी आ, इस तरह आप इलैक्ट्रिक करंट नूं प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड, चाहे तुसीं फ्लैमिंग राइट हैंड रूल लगा लो, चाहे फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा लो, ठीक है जी। मैं तुहानूं समझाए हुए ने फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल की हुंदा, फ्लैमिंग राइट हैंड रूल की हुंदा, समझ आई। क्योंकि दोनों तो एक तो करंट इंड्यूस्ड करंट सेम ही चीज़ आ रही है ना, इस करके मैंने बाय फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ किया, दैन तुहानूं डायरेक्शन समझाती भी एवें डायरेक्शन जाती है जी। ओके जी, क्लीयर हो गया। हुण मैंने इसकी वर्किंग बी लिखी हुई आ, देखो आ वर्किंग इट इज़ बेस्ड ऑन इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अपन पता ही है बेस्ड है इलैक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन दे। वैन द कॉयल ए बी रोटेट इन द अपवर्ड, दसदा ना भी जो अपवर्ड गया बाय यूजिंग फ्लैमिंग लेफ्ट हैंड रूल वी विल ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लोअर डायरेक्शन मीनस बी टू ए इन द हाफ, फर्स्ट हाफ, फिर सैकेंड हाफ किया, दैन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सी डी ऊपर चली गई, ऊपर चलने ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ डायरेक्शन देखी भी अपोजिट आ गई, कॉल्ड ए सी जनरेशन। मतलब हुणे तो आपको ये पता लगे भी पोलैरिटी चेंज हो गई ना, पहला अपवर्ड दैन अपने को डायरेक्शन डाउनवर्ड आ जा रही सी, जो डाउनवर्ड आ गई अपने को डायरेक्शन की आ गई अपवर्ड, दोनों के विच पोलैरिटी चेंज, जो पोलैरिटी चेंज डायरेक्शन चेंज मीनस उत्थे वो की है, उत्थे ए सी करंट आ, ए सी करंट किहदे विच जनरेट हुंदा ए सी जनरेटर दे विच, मतलब ए सी जनरेटर दे विच किहड़ा करंट जनरेट होगा ए सी करंट। ओके, हुण इहदी थोड़ी जी डेरिवेशन है सिंपल, देखो हुण देखो रोटेट कर रही है ना चीज़, रोटेट आप हैंडल में रोटेट कर रहे हैं, उत्ते सिंपल वेलोसिटी तो होगी नहीं, उत्ते किहड़ी वेलोसिटी होगी एंगल के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं, दैन उत्ते किहड़ी वेलोसिटी होगी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना। तो फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, अपन क्यों लिखा मैगनैटिक फ्लक्स कर सकते हैं, क्योंकि मैगनैटिक फील्ड लाइन्स बन रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एरिया, जिन्ना रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया है। बी ए डॉट कट के अपने को कॉस थीटा लग गया, स्केलर प्रोडक्ट है सिंपल, एज वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी, तुम समझते ही हो भी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी की होंगी है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय थीटा, दैन थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी, मैंने वो चीज़ पुट कर दी। फॉर एन टर्म्स की आ जाएगा एन बी ए कॉस ओमेगा टी आ गया, फिर आडेस लॉ यूज किया, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी, फाई की वैल्यू पुट की, दैन जो पुट की दैन मैंने देखा भी एन भी कॉन्सटेंट, बी भी कॉन्सटेंट, ए भी कॉन्सटेंट, दैन जो कॉस ओमेगा टी की डिफरेंसीएशन की बाय डी अपॉन डी टी के नाल, दैन कॉस ओमेगा टी की डिफरेंसीएशन आती है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, जोड़ा टी के नाल लग्या होंदा उसकी दोबारा डिफरेंसीएशन होंदी है, दैन लिखा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ओमेगा भी बाहर कढ़ लिया, साइन ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस हो गया, दैन इनू की लिखता मैक्सिमम ई एम एफ, मतलब इंड्यूस्ड ई एम एफ जी अपने को जनरेट हुई, दैन वह फार्मूला जोड़ा ये फार्मूला ना ये JEE के लिए भी जरूरी है, जोड़ा JEE मीनस जो भी दूगा ये फार्मूला याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एन बी ए ओमेगा इज इक्वल टू ई एम, फिर उस तो बाद बाय ओम्स लॉ ई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, अपन पता है आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी अपने को वोल्टेज मतलब इन दी फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड ई एम एफ, दैन अपने को वैल्यू मैंने पुट की, ई की वैल्यू की आ गई अपने को सिंपल आ गई अपने को, इनू मैंने ई एम पुट करता, ई एम साइन ओमेगा टी अपॉन आर। हुण आप इसनू दोबारा तो यही फॉर्मूले तो लिख सकते हैं, आई एम मैक्सिमम करंट इन द AC जनरेटर, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, इस तरह तुम ये डेरिवेशन कर सकते हो। ओके बेटा, तो देखो तो मैं सारा प्रिंसीपल वगैरह एंड डायरेक्शन वगैरह चंगी तरह समझाती, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए दैन तुम मेरे मैनू कमेंट बॉक्स के दस सकते हो, ठीक है भी ये प्रॉब्लम आ रही है। ओके बेटा, थैंक यू।